Pakistan is the only country where ex-prime minister, sitting prime ministers are hanged. What happened to Zulfikar Ali Bhutto? He was hanged. There was a time when in Pakistan itself they had more than 500 terrorist training centers. There used to be time. Was there Pakistan before 1947? No. But जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें दिखाते हैं भाई एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये था, पाकिस्तान में वो था. It talks about the Pakistan history. It goes up to 3000 year BC. अगर कल को सर देखिए इमरान खान कम्स आउट, ही फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, व्हाट विल हैपन? क्या ये आर्मी चीफ्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं ले सकते आप, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इज एवरीवेयर. आपने कहीं देखा कि मोदी जी बाहर जाते हैं कहीं मिलने के लिए किसी यात्रा पर? अभी वो श्रीलंका की यात्रा पर गए, अभी वो थाईलैंड की यात्रा पर गए. राइट. कौन उनके साथ गया? उनके मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड ऑल द मिनिस्टर्स. या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है यात्रा पर तो उसके साथ कौन जाता है? आर्मी चीफ. आर्मी चीफ. पाकिस्तानी डीप स्टेट क्या है, और पाकिस्तानी डीप स्टेट में अगर आईएसआई आती है, पाकिस्तान आर्मी आती है, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो इंडिया पे क्या असर डालती है? आप भूखे हैं, आपको खाना नहीं मिला, बट आपके सामने एक आदमी आपके खोपड़े पर बंदूक रख के खड़ा हुआ है. उसने कहा अगर आप बोले तो आपको गोली मार दूंगा. तो आप भूखे मरना पसंद करेंगे, गोली खा के मरना पसंद करेंगे? तो यही सिचुएशन पाकिस्तानी आवाम की है. एवरीवन इज लिविंग आउट ऑफ फियर. पाकिस्तान ने 48 में लड़ाई लड़ी, 65 में लड़ाई लड़ी, 71 में लड़ाई लड़ी और 99 में ऑपरेशन विजय हुआ. अगर पाकिस्तानी आर्मी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान चारों लड़ाइयों में विक्टोरियस दिखाई देगा. 71 की लड़ाई में उन्होंने कहीं भी आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में बांग्लादेश का जिक्र नहीं मिलता. हम लोगों ने वहाँ पर उनकी कब्रें दफनाई हैं. पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स, उनके कार्ड थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे. डिस्पाइट ऑफ दैट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बॉडीज ऑफ देयर ओन सोल्जर्स. Hello and welcome to India.com. Before I start this conversation, I would like you guys to please press that subscribe button, and if you can, please do press that bell icon as well. This conversation which will give you a lot of information about Pakistan, about India and the geopolitical connections and relations of India with the bordering nations that we are currently having. We have with us our international expert, Major Amit Bansal ji. Sir, welcome to the show. Thank you, Abhishek. Sir, last time we talked about China and our relations with China. This time, sir, we specifically, I asked you to talk about Pakistan. Pakistan and India's relations since 1947 till today. I would like our audience to understand the unbiased point of view of Pakistan as a neighbor, how India has treated Pakistan, how Pakistan has never been able to deliver what India gave in terms of relations, in terms of trade. India wanted good friendship with Pakistan. Sir, we would also break down the Pakistani frame of thinking, like what exactly is happening in Pakistan, how Pakistan army is kind of creating a lot of trouble in Pakistan and outside the bordering nations. So we will start with the first question. The first question would be why and what is happening is in Pakistan currently, because there has been a lot of issues, lot of knowledge, lot of things that Pakistan's economy is in tatters. Why is it happening? What has Pakistan done to lead to this situation which they are in right now? See, there are two things in Pakistan. First of all, as we spoke about the economic situation. So Pakistan has reached this level of economic situation where there's no foreign reserve available, the economy is in tatters, the inflation rate is the highest. That is primarily I would say it is because Pakistan has lost its credibility in front of the rest of the world. See what happened? Afghan war started. America started pumping in money into Pakistan. Instead of putting that money into the right place, Pakistan completely, because of the corruption, because of the, again we'll talk about the deep state also, Pakistani deep state, Pakistani establishment, and all those things, this entire aid went off to unknown people, so-called unknown people, and it couldn't reach nowhere. World Bank, international agencies, they have given humongous funds to Pakistan. All was siphoned off. Even in China-Pakistan Economic Corridor, which was started in 2015, China pumped in almost $50 billion in Pakistan. But where are they? It has also been siphoned off. So when you talk about all these things, so Pakistan has lost the credibility as far as the economical aspects are concerned. Even they lost the credibility of China also. So that is the reason why China is no more investing any more funds into CPEC. Now comes to the situation when it comes to the internal situation, or maybe the internal security, maybe the internal turmoils. So
if you see the top terrorist groups in the world, Al Qaeda, where was it born? Pakistan. Pakistan. Islamic State, where was it born? Pakistan. Name any deadly and top terrorist group of the world. Taliban, where was it born? Pakistan. Once upon a time, Taliban was a terrorist group. So everything was born in Pakistan. So when you sow what you sow, what you Yeah, reap. definitely. So exactly the same thing is applicable on Pakistan also. Pakistan ने पूरे दुनिया में आतंकवादी बना करके भेजे. There was a time when in Pakistan itself they had more than 500 terrorist training centers. There used to be time. More than 500 training centers for terrorists in Pakistan alone. So, what about the world? लोग देख नहीं पा रहे हैं. What is happening around the world? Is US not monitoring? Is UK not monitoring? UN ये सब क्या कर रहे हैं? Are they not able to see what is happening in Pakistan? Forget about Because UN. Osama भी yes. मिला था. Forget about UN. UN is a toothless tiger. But when it comes to US and when it comes to Europe, everything is talking about their own interests. So there was a time when Pakistan was a tool for America to address the concerns in Afghanistan. So they kept their eyes closed. There was a time when European forces were operating out of Pakistan. So they kept their eyes closed because that time they had some kind of concern with Pakistan. Now they don't have. So now they started pointing it out. But moreover, there are other things also. So there are factors with relation to Middle Eastern countries. There is a factor which is related to Islamic countries. Yes. There's also a factor related to the so-called nuclear bomb of Pakistan. So all the factors put together is creating a situation where people are not openly, of course, they're registering the concern of Pakistan. And that is the reason why Pakistan is in economic turmoil. Sir, if you talk about India and Pakistan, 1947 दोनों देशों को एक साथ आज़ादी मिली थी. Yes. What happened after it? Recent after independence and later, मैं आपसे दोनों जानना चाहूँगा in transition क्या हुआ that India is the world's 5th largest economy, GDP हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा compete है, fastest growing economy, and Pakistan almost it is in shambles. को अभी तो पाकिस्तान के लिए it is very difficult to even survive as a country because Balochistan, POK and people from different fronts are coming against the main authority. देखिए, when we see in 1947 when the partition happened, so actually the partition happened over the blood. I always say that Indo-Pakistan border is the only border in the world which is marked with blood ever since 1947. So much of bloodshed has happened ever since then. So if you see 47, post-47 India, post-47 Pakistan, India had a peaceful government which was trying to avoid all the conflicts. Nehruji was the Prime Minister, so he started talking about people. He adopted a policy of non-alignment because that was the time when the Cold War was almost visible, though it didn't start officially. And so he was a non-alignment guy. Pakistan was still ruled by the military people. Who was the first president of Pakistan? Iskandar Mirza, an army official. Who was the second president of Pakistan? Ayub Khan, another army. So in Pakistan, from the very starting, the foothold of Pakistan army was very, very strong. We rolled out our constitution in 1950. Pakistan rolled out its constitution in 1978. So there was not even a constitution, and every time for continuous 31 years, there was a military rule. Direct or indirect, you can talk about. Initially, the Britishers was ruling, then the caretaker government, then there was Ayub Khan, then there was all sort of people, and finally 78, again in 1980, again this Ziaul Haq took over. Again there was a military government. So Pakistan, if you see, there are two kind of periods. One is a constant military rule. Constant military rule. Even till date, Pakistan is the only country where ex-prime minister, sitting prime ministers are hanged. What happened to Zulfikar Ali Bhutto? He was hanged. So, एक पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम बन गया है. Army rules everywhere. Until date it is happening. We'll talk about it later. Now comes to economy. Today we are the 5th largest economy of the world and probably going to be among the top 3 in next few years. But what was in the situation in 1992? It was almost reversed. Pakistan was economically much stable, much stronger than India. We had to pledge our gold. Yes. We were not even in a situation to survive. Yeah. So, economic situation of the country depends upon the leadership. If there's a weak leadership, if there's a leadership which cannot take calls, if there's a leadership which cannot rule its country properly, so then there is an economic crisis. So that's what is happening in Pakistan.
The economic crisis did not come all of a sudden. It started happening from 2016 onwards, when Trump became the president for the first time, and then he started pulling out his resources. Yeah. Pakistan, which was dependent on American aid, it started faltering on its commitment. Secondly, the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, it thought that it will sail through, but because of the corruption, because of the rampant continuous intervention of Pakistan Army into day-to-day matters, things couldn't materialize. Not even a single special economic zone which was planned in CPEC is functional, except motorway M1, M2 and this main expressway connecting Gwadar to the Khunjare Pass. Nothing is functional. Gwadar Airport has just been commissioned, and despite of that, its fully operational status has not been achieved. Gwadar Port is still not functional. Gwadar Special Economic Zone is still not functional, despite of the fact that over $50 billion have been pumped in by China. So, because of these things, now people are not giving any more money. Pakistan itself is, because of its own arrogance, it stopped trade with India. So, had it continued trade with India, things would have been different. So, it is not doing trade. Other countries are not doing trade with Pakistan. It doesn't have resources to export. So, overall, because of the poor policy and over and above the government instead of, क्या करती है government पाकिस्तान की? केवल जाकर के army chief के आगे बैठ जाते हैं. जी. Whatever army chief says, we'll do that. Because it's the army chief which made them the prime minister. Yes. Who made Shehbaz Sharif prime minister? Army chief. It's very clear. The elections were rigged. Everybody knows it. So, अब जब आपको प्राइम मिनिस्टर आर्मी ने बनाया तो आप आर्मी की कहेंगे. उनके लिए, then for them, the common public, the economy of the country's status, the country's growth has got no meaning. Nothing matters to them. That's all. So that's what is happening in Pakistan. Thank you, sir. That was a very nice, I would say, summary of what actually has been the comparison between India and Pakistan. But sir, when you talked about leadership has been an issue in Pakistan. Like if we talk about Pakistani Prime Minister, there has been no single Prime Minister who had completed his term. And if we talk about the recent ones, Imran Khan, he's in jail. And there has been a lot of controversy behind him going to jail. Sir, I want to know basically why Pakistani Prime Ministers are not able to complete their tenures. What is the pressure of the Pak Army, and why is Pak Army so much involved in the day-to-day life of the authorities, the main assemblies, and every policy? See, I'll tell you. I'll answer the last question first. The Pakistani army has been involved into the day-to-day affairs of Pakistan because it has been designed and engineered from the very first day because of that. When Pakistan came into existence, the first defense minister who was there, Major General Iskandar Mirza. So he paved the way that his own junior Ayub Khan becomes the army chief, power comes to him. So all the power over a period of time was slowly transferred into the army chief. Then came the era of dictators, military dictators, Ayub Khan, then you talk about Zia-ul Haq and all, then later on Parvez Musharraf. So these people were able to put a kind of fear in the mind of the political leadership कि भाई आपने अगर सांस भी लेनी है तो आप हमारी मर्जी से सांस लोगे जी. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन पाकिस्तान. आप कुछ भी बात करेंगे, आप बात करेंगे कितने भी किसी बड़े पीएसयू की बात करते हैं, हु इज रूलिंग द पीएसयूज? पाक आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स. पाकिस्तान के अगर आप सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, हु इज रूलिंग इट? विच इज द बिगेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान, इंडिया का जैसे हम बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, इंडिया में अंबानीज हैं, अदानीज हैं, बड़े ग्रुप्स हैं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट कौन सा है? कैन यू नेम इट? It is Fauji Foundation. Fauji Foundation. Yes, Fauji Foundation is technically an NGO, but it is run by Pakistan Army. Fauji Foundation का headquarters कहाँ पर है? पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में. Fauji Foundation क्या करती है? सारे काम करती है, फर्टिलाइजर बनाती है, सीमेंट बनाती है, स्टील बनाती है, खाने का आइटम प्रोड्यूस करती है, उनके फार्म्स हैं, उनके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हैं, सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो सारे काम करते हैं. अब क्या होता है कि सारी चीज़ें करके दे आर रनिंग द इकोनॉमी, एंड मोर ओवर व्हाट हैपेंस, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेस्ट्स. यस यस, डेफिनेटली. उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको सारे के सारे जो चाहिए होता है मिलते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अस्करी बैंक लिमिटेड, कौन उसका मालिक है? पाकिस्तान आर्मी. पाक आर्मी, ठीक है. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन मैग्नेट है, सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट है, वो है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज. कैसे काम करते हैं ये? सरकार उनको फ्री में लैंड देती है. ओके भाई, आप 45,000 एकड़ लैंड ले लीजिए, आप 50,000 एकड़ लैंड ले लीजिए, आप 60,000 एकड़ लैंड ले लीजिए. नाउ दे टेक द लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी. उसके ऊपर वो गवर्नमेंट से लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के उसके ऊपर प्लॉटिंग करते हैं, उसको बड़े दामों में बेचते हैं.
तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो दे आर द बिगेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। प्रॉफिट गोज कहाँ जाता है? प्रॉफिट जनरलों की जेब में। तो अब जब आप ऐसे और उनको पावरफुल बना देते हैं, अब क्या होता है कि ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ था पिछले इलेक्शंस में? इमरान खान वाज फाइटिंग। इमरान खान बहुत अच्छी तरह से लड़ने वाला था, सबको पता था इमरान खान की पार्टी के लोग आएंगे पावर में। क्या हुआ? उसकी पार्टी को बैन कर दिया आपने। डिस्पाइट ऑफ दैट उसके जो लोग इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े वो भी एक बड़े बहुमत से जीत करके आए, बट देन दे सेड ओके दे विल नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। रूल बना दिया, उसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं दी। उसके बाद उसके ऊपर केस चला दिया, उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद कुछ जजेस थे जुडिशरी जिन्होंने इमरान खान के फेवर में फैसला दिया, उन जजेस को इमीडिएटली रिमूव कर दिया गया, नया जज अपॉइंट किया गया। उसने इमरान खान का एंटी फैसला दिया तो उसको कंटिन्यू रखा। तो आप देखते हैं जिस तरह से जुडिशरी को आप डिक्टेट कर रहे हैं, जुडिशरी को आपने पूरी तरह से टेम कर लिया है। आपके तरीके से जुडिशरी चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी आपके तरीके से चल रही है, आर्मी आपके तरीके से चल रही है, पुलिस आपके तरीके से चल रही है, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आपके तरीके से चल रही है। तो कौन चला रहा है? पाकिस्तान आर्मी चीफ। आपने कहीं देखा कि मोदी जी बाहर जाते हैं कहीं मिलने के लिए किसी यात्रा पर? अभी वो श्रीलंका की यात्रा पर गए, अभी वो थाईलैंड की यात्रा पर गए, कौन उनके साथ गया? उनके मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड ऑल द मिनिस्टर्स। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है यात्रा पर तो उसके साथ कौन जाता है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ। तो आप ये समझिए कि आर्मी ने जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, सर अभी कोई होप नहीं है। व्हाई डू दे कॉल देम सम डेमोक्रेसी देन? मतलब दे आर मोर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कि नाम के लिए डेमोक्रेसी है। आप बहुत जब इलेक्शंस करते हैं, चाहे जो भी इलेक्शन हो वो सारे, टेल मी वन इलेक्शन विच इज फेयर, फ्री एंड फेयर इन पाकिस्तान। एक इलेक्शन आप मुझे बता दीजिए हिस्ट्री में जाकर के जिसको आप 100% फेयर इलेक्शन। एवरी इलेक्शन इज रिग्ड इन एवरी इलेक्शन इज रिग्ड। इवन व्हेन इमरान खान वाज इलेक्टेड, उस समय में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को लगाया गया बूथ के ऊपर, दबाके के बूथ कैप्चरिंग हुई। इमरान खान वाज विक्टोरियस। उसके बाद देन व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान का आम जनता मानती है कि इमरान खान यूज्ड टू टॉक अबाउट द कंट्री, पाकिस्तानी पीपल। बट क्या हुआ? उसने कहा ठीक है पाकिस्तानी लोगों की अब मैं बात करूंगा, बट ही वाज नॉट डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो उसको हटा दिया, जेल में पड़ा है। व्हाट इफ ही कम्स आउट? सी आई डोंट थिंक सो दे लेट हिम, बिकॉज अभी देखिए 2-3 केसेस में उसको बरी किया गया, बट फिर उसको जैसे ही वो बाहर आता उसके आने से पहले एक और केस लगा करके उसको अंदर कर देते हैं। अगर कल को सर एक माइन्यूट चांस होता है, हम चलो हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि इमरान खान कम्स आउट, ही फॉर्म्स अ गवर्नमेंट और काफी बहुमत के साथ वो गवर्नमेंट बनाता है, व्हाट विल हैपन? अगर एक, हालांकि मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होगा उसके बाद? क्या ये आर्मी चीफ्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं ले सकते आप, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इज एवरीवेयर। वो कहाँ नहीं घुसे हुए? आप वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुसे हुए हैं, वो जुडिशरी के अंदर घुसे हुए हैं, वो आपके पुलिस डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर घुसे हुए हैं। आप कहाँ कहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को निकालेंगे और आप कहाँ कहाँ से उनके सिंपैथाइजर्स को निकालेंगे? हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं, हर जगह उनके सिंपैथाइजर्स बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा काम एक बार में नहीं हुआ, इट हैज हैपेंड ओवर लास्ट 75 ईयर्स। पिछले 75 साल में जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने डीप अपनी जड़ें बनाई हैं और अपना पाकिस्तान का डीप स्टेट खड़ा किया है, उसको आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 5 साल, 10 साल में भी नहीं निकाल सकते। इम्पॉसिबल। सर आपने डीप स्टेट अब बोला है, तो आई वुड लाइक यू टू एड्रेस दिस थिंग, बिकॉज अमेरिकन डीप स्टेट और एक इंटरनेशनल डीप स्टेट का हमने ये वर्ड सुना है. This word has been in a lot of controversy. When Trump came, he also said that he would demolish the deep state. पाकिस्तानी डीप स्टेट क्या है? और पाकिस्तानी डीप स्टेट में अगर ISI आती है, पाकिस्तान आर्मी आती है और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो इंडिया पे क्या असर डालती है? देखिए, पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है उसको एक कॉमन भाषा में वी कॉल इट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट. एक कॉमन, पाकिस्तान के अंदर भी उसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं. अब ये एस्टेब्लिशमेंट में क्या शामिल है? एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ब्यूरोक्रेसीज का एक पिलर है, जुडिशरीज का एक पिलर है, कॉमन ऑफिशियल्स वर्किंग इन PSUs एंड एवरीवेयर उसका एक पिलर है, पॉलिटिशियंस उसका एक पिलर है, साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसका एक पिलर है, और इन सारे पिलर्स को कंट्रोल करने वाला जो पिलर है वो है पाकिस्तानी आर्मी. आप देखते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो पाकिस्तानी आर्मी के तलवे चाटता है, वो उसके पास टैक्सेस नहीं लगते, उसको सारी छूटें दी जाती हैं, उसको फ्री लैंड दी जाती है, उसको दुनिया भर की बेनिफिट्स मिलते हैं जी, वो आगे बढ़ जाता है. जो इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी के साथ थोड़ा सा एंटी करके चलता है उसको ख़त्म कर देते हैं लोग. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो एक फाइनेंशियल डोमेन में अलग चलता है, पावर के डोमेन में अलग चलता है, इंटरनेशनल अफेयर्स के डोमेन में अलग चलता है. अब लॉन्ग बैक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द अमेरिकन आर्मी ऑफिसर, बहुत वक्त पुरानी बात है. तो इसे इसकी पाकिस्तानी टेक केयर ऑफ अस लाइक एनीथिंग. आई सेड व्हाट हैपेंस? ही सेड कि व्हेन वी वर डिप्लॉयड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द अफगान वॉर, we used to come with our families for holidays to Pakistan.
and we used to stay for months in mountains. We used to do hunting openly. We used to do anything, and they used to take care of anything. तो क्या होता है अब who's doing it? पाकिस्तानी establishment. तो हर जगह चाहे आप इंटरनेशनल फोरम में देखें, चाहे आप इकोनॉमिक फोरम में आई टोल्ड यू बिगेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट कौन है? फौजी फाउंडेशन. आप पावर के डोमेन में देख लें, पाकिस्तान की जितनी पावर है वो कहाँ कंसोलिडेटेड हो रखी है? पाकिस्तानी आर्मी. इकोनॉमिक्स उनके पास है, पावर उनके पास है, पॉलिटिक्स उनके पास है. पॉलिटिक्स में आप बता दें मुझे एक पॉलिटिशियन जो पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज करने की पावर रखे. आप एक पॉलिटिशियन, इफ ही गिव्स ए स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी टुडे, he'll be arrested within hours and he'll never come out. तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, पहली बात. और डीप स्टेट इतना स्ट्रांग है कि डीप स्टेट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी के भी अगेंस्ट कर सकता है. तो इसके ऊपर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. Sir, what about Pakistani people? Are they not aware about it? What is happening is they are facing a lot of inflation. They are facing this turmoil that no prime minister has ever been able to complete their tenure. Especially Imran Khan. People are really bothered about him. Like people are really, asking the establishment to bring him out. What is the point of view of the Pakistani people? What do they want? अब मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ. आप भूखे हैं, आपको खाना नहीं मिला, बट आपके सामने एक आदमी आपके खोपड़े पर बंदूक रख के खड़ा हुआ है. उसने कहा अगर आप बोले तो आपको गोली मार दूंगा. तो आप भूखे मरना पसंद करेंगे, गोली खा के मरना पसंद करेंगे? भूख से हो सकता है कि आप 3-4 दिन और जिंदा रह जाओ, लेकिन अगर आप बोले तो आप तुरंत मारे जाओगे जी. तो यही सिचुएशन पाकिस्तानी अवाम की है, पाकिस्तानी पब्लिक की है. जब इमरान खान को हटाया गया था तो पूरे देश में प्रदर्शन हुए. बिल्कुल. लोगों ने इधर उधर बहुत प्रोटेस्ट किए. क्या हुआ उन सारे प्रोटेस्टर्स का? सब जेल में हैं. एक बड़ी तादाद में लोग लापता हो गए, उनका आज तक कुछ पता नहीं है, मारे गए या कुछ नहीं हुआ. इमरान खान की पार्टी के सारे नेता जेल में हैं. तो सबको पता है कि आप मुंह खोलेंगे तो आप मारे जाएंगे, आप मुंह खोलेंगे तो आप गायब हो जाएंगे. आप बलूचिस्तान की बात कीजिए, बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई. 30,000 से ज़्यादा लोग आज की डेट में लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं है. उन्हें जेल में डाला गया, उनको मार दिया गया, उनके बारे में कोई खबर नहीं. सर, अब यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं ह्यूमन राइट्स वाली, और वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओज जो कहते हैं कि इंडिया में अगर ज़रा सा भी कहीं भी कुछ, जो कश्मीर में फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया करते थे, और पाकिस्तान में जो इतना सब कुछ विटनेस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता. देखिए, मैं ये मानता हूँ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप देख लें, कोई वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकाल रही है, कोई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल रही है, कोई डेमोक्रेसी के ऊपर अपने आप को बात कर रहे हैं, ये एनजीओज हैं. और ये सारी एनजीओज कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के फंड से चलती हैं, और वो फंड मैनेजर जो चाहता है वो करती हैं. These are not government organizations. These are not internationally recognized organizations. They are some sort of NGOs. अब होता क्या है, जो फंड देगा उसके हिसाब से वो काम करती हैं. अब कोई ना कोई पाकिस्तान के, आज भी मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड से पूरी तरह कट गया है. पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में सिंपैथाइजर्स हैं. इनफैक्ट 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि पाकिस्तान ने ओवर $25 बिलियन in 10 years they paid to various lobbying companies. उन कंपनीज को पे किए गए कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग अलग मुल्कों में लॉबिंग की, उनके पॉलिटिशियंस का लॉबी किया, उनकी इमेज बनाने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए. तो आप सोचिए किस लेवल में जा रहा है. हम लोग तो नहीं करते ऐसा. सर, उनकी खुद की ग्राउंड स्टेट में दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली. लाइक ठीक है, पाक आर्मी की अगर बात करें तो आई थिंक जितने भी पाक आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उनके बड़े बड़े बंगलोज हैं दुबई में, इंग्लैंड में, यूएस में, और वो शायद रिटायरमेंट लेते हैं तो चले ही जाते हैं. पाकिस्तान में कोई नहीं रहता. जो लोग सिटीजन रह रहे हैं वो लोग आखिर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? वो सर्वाइव कर रहे हैं, फियर में सर्वाइव कर रहे हैं. आप, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, आप आज जाकर के पाकिस्तान की किसी आवाम से पूछिए, चले भाई आप जाकर के पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ झंडा उठाइए, वो नहीं उठाएगा. उसको पता है मैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलूँगा, अगले दिन मुझे मार दिया जाएगा. आप जिंदा रहना चाहेंगे कि आप प्रोटेस्ट करेंगे? पर सर, इसमें नेशनलिज्म की, अगर नेशनलिज्म की बात है तो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी के जो लोग हैं वो लोग शायद समझ नहीं पा रहे इसमें नेशनलिज्म है या फिर फियर ऑफ. पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एवरीवन इज लिविंग आउट ऑफ फियर. एवरीवन इज लिविंग आउट ऑफ फियर. आप बात करें लोगों से, बहुत बड़ी तादाद में मैं लोगों से बात करता हूँ जो दुबई में पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. वो कहते हैं भाई जो बाहर आ गया, ओनली दैट पाकिस्तानी विल स्पीक हुज कम आउट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर रह करके कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता. जी, ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट चला आ रहा है, उसको आप कुछ रूल आउट नहीं कर सकते. अभी सर प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, एंड
पहले बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट थी who were favoring Pakistan, but right now Pakistan is not able to get that fund that you were talking about that they were getting. So even if we talk about जो उनके जो जेट्स हैं जो अमेरिका ने उन्हें दिए थे उसकी मेंटेनेंस के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है. What is the future of Pakistan from now? सी देखिए, जहाँ तक अमेरिका के रिलेशंस की बात है तो वो अमेरिका इज़ अ वेरी क्लेवर कंट्री. इट वर्क्स एज पर द कन्वीनियंस. आज उसकी कन्वीनियंस है तो वो कहता है कि मैं एंटी पाकिस्तान हूँ. कल को उसकी कन्वीनियंस होगी तो इट विल बी द फर्स्ट कंट्री टू प्रेज पाकिस्तान. तो हम इसके ऊपर अमेरिका की बात नहीं करते. अमेरिका के लिए देयर इज नो फ्रेंड, देयर इज नो एनिमी. सो फॉर देम इट चूजेज इट्स फ्रेंड्स एंड इट चूजेज इट्स एनिमी आउट ऑफ द कन्वीनियंस. Sir, what is the future of Pakistan from now? See, future will be decided. You cannot say anything about it, but I think Pakistan is digging its own grave. बलूचिस्तान जो है वो भी इस समय बहुत ज़्यादा उबल रहा है. जो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा वो बहुत ज़्यादा उबल रहा है और लगातार इंटरनल टर्मोइल्स बढ़े हुए हैं. आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन. व्हेन इट विल इम्प्लोड वी डोंट नो. इट मे इम्प्लोड विद इन 2 years, 3 years, maybe in 5 years. There will be some trigger, but I think it will implode. And that implosion is the one which will consume the entire Pakistan. Sir, one last question I want to ask you. The history that we are being taught, मतलब जो हमें क्लासेस में स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, and the history that is being taught in Pakistan is very much different. अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जो आज़ादी और आज़ादी के बाद जो जंग पाकिस्तान और इंडिया की रही है उसको अलग तरीके से दिखाया गया है पाकिस्तान में. हालांकि वो जंग भारत ने जीती, हमेशा खदेड़ा है पाकिस्तान को. एंड वट एवर इज बीइंग टॉट इन पाकिस्तान इज इन द फेवर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी. देखिए, अगर आप पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया है, देखिए पाकिस्तानी आर्मी एक फेक इमेज अपनी बना करके चलती है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इज द रूलिंग पार्टी. तो वो अपनी इमेज बना के चलती है. इट वांट्स टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू द पाकिस्तानी नेशनल कि भाई हमसे बेहतर कोई नहीं है, वी आर द बेस्ट. तो क्या हुआ, टेक्निकली पाकिस्तान ने 48 में लड़ाई लड़ी, 65 में लड़ाई लड़ी, 71 में लड़ाई लड़ी और 99 में ऑपरेशन विजय हुआ. अब पाकिस्तानी आर्मी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि इंडिया में बैंड है, पाकिस्तान ने खुद ही बैंड किया हुआ है, अगर पाकिस्तानी आर्मी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान चारों लड़ाइयों में विक्टोरियस दिखाई देगा. वो कहते हैं हम 1948 में हमने इतना इलाका कब्जा लिया, वो सारा झूठ है. 65 की लड़ाई में हमने हिंदुस्तान को खदेड़ दिया. 71 की लड़ाई में उन्होंने, कहीं भी आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में बांग्लादेश का जिक्र नहीं मिलता. There is no mention of Bangladesh or East Pakistan in the entire history of Pakistan Army, which is written on their website. It only covers the Western Front. What is it called then? The Eastern Pakistan? No, कुछ नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है. वो बिल्कुल साफ कर दिया गया है. They only cover the Western Pakistan. उसमें वो कहते हैं कि हमने यहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया, खेमकरन सेक्टर, बसंतर सेक्टर, यहाँ पर हमने कब्जा लिया, and we defeated India technically. खत्म कर देते हैं. और 99 जो था ऑपरेशन विजय, आप देखिए 99 में हुआ ऑपरेशन विजय. बिल्कुल. 2010 तक उन्होंने अपने सैनिकों को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हमारे सैनिक इसमें इन्वॉल्व थे. यस. 2010 में जब इंटरनेशनल इश्यू हुए और जब मुशर्रफ को फाइनली कबूल करना पड़ा, तब कबूल हुआ, तब जाकर के उन्होंने अपने सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए. उसके पहले तो एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं थे कि हमारे सैनिक इसमें इन्वॉल्व थे. तो आप समझिए किस लेवल तक जो आदमी, हमें पता है कि हम लोगों ने वहाँ पर उनकी कब्रें दफनाई हैं. पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स, उनके कार्ड थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे. डिस्पाइट ऑफ दैट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बॉडीज ऑफ देयर ओन सोल्जर्स जस्ट टू प्रूव देयर ओन सुप्रीमेसी, जस्ट टू प्रूव दैट दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट. सो अब जब आप फेक एक इल्यूजन में जी रहे हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. और इसलिए वो हिस्ट्री को पूरा डिस्टॉर्ट करते हैं. पूरा इल्यूजन है, हर जगह इल्यूजन है. वो कहते हैं कि टुडे इफ यू सी, भाई was there Pakistan before 1947? No. बट जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें दिखाते हैं भाई एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये था, पाकिस्तान में वो था. इट टॉक्स अबाउट द पाकिस्तान हिस्ट्री, इट गोज अप टू 3000 year BC. But how? There has been no Pakistan. So they cover only whatever events have taken place in the Pakistan. Harappa, Mohenjo-daro, and they completely have removed everything on that. Right. I think it is a web of lies of Pakistani army. Yes. And thank you so much for kind of decluttering all of the fake news and fake Pakistani narrative that has been there on the internet. Thank you so much, Major sir. We have with us right now Major Amit Bansal. He has been with us through the whole series. This is the second episode that we are doing, and sir, we are yet to do a lot more. We would want you to narrate the story of Bangladesh, Sri Lanka. Yes, we'll have to cover something on Bangladesh also, because now Bangladesh is undergoing a very major reformation, I'll call it. I'll not call it a turmoil, I'll call it a reformation. So we will talk about it.
I We'll think also talk about this word is intriguing. We'll also talk about the Indian Ocean, which will cover the entire, not only Sri Lanka, but also cover the other countries of Indian Ocean like Maldives and Mauritius and all. Wow. So I think, sir, we have to leave right now. Sure. But all of these topics would be covered in the next episodes Sure. of the series. We'll do that. I would ask you guys to please subscribe to the channel and do share, because this video has a lot of unbiased and very a simple and summarized knowledge of what the geopolitics of India and its borders are. There is no sensationalization here, just simple knowledge, raw words that are going to help you increase your awareness and your knowledge about the borders. Thank you so much for watching. Do keep our videos on your top deck, and yes, do subscribe the channel. Thank you.